Okay, I think started. Okay, let me give a short intro about myself. As Niyam told you that I am a software developer at Axel Web Technologies, and today I want to tell you about the roadmap how you become a successful full stack developer. Okay, so let me share my screen first. My screen is visible now. Yeah. Screen. Thank you. Okay. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. Let's move forward. Okay. So here is the roadmap. I think this is not clear for you right now because I made this with the help of Coggle, and after when I go forward, then it will clear more. Okay. Okay. Uh, before you jump to as a full stack developer, you need to understand how the whole internet works, how the HTTP request you can send, how we can get back response over HTTP request, how your every internet thing work. Just like you also know that when you just Google it, or if you're surfing any website, then what you did, first of all you just enter the website name, okay, and then after when you hit submit on the particular website name, then it will redirect to a new page. How this all things work, this is totally a flow by which when you send your HTTP request, then the server responds back with the HTTP response. Okay, so this you need to understand first how the internet works, and then after you can easily know the basic flow of the whole the internet. Okay, so you need to first understand what is the hosting. Hosting is means that just like you made a website for you, okay, and if you want to make a live for you, first of all the website is under in your PC or any system, okay, so no one outsider visit your website, so you need to host somewhere. Just like you also know that the domain name, just like www.google.com, means that this is the domain name by which your, sorry, by which your website is named. This is called a domain. Just a minute. Okay, the second one is HTTP. This is the hypertext transfer protocol. You already know about that. And the fourth one is browser. So there are mostly two or three browsers in the market which is widely used. And the first one is Google, and the second one is Chrome. When you start developing, then you need to test also your flow. Then definitely you have to use these browsers. The first one is Google. The second one is Chrome. Okay. Okay, and I also provide the clickable link. When you click on this text now, how the internet works. Just a minute. Okay, when you click on this text, how the internet work, I will attach a here link. Okay, when you click that, you will redirect to YouTube videos where you can easily understand how the whole scenario works. And this is also a clickable link. What is the internet? And this is from code.org. And this is a reference for you. If you want to understand more and very deep down to it, you can just go through that. Okay, so these are the basic tools. Here I am giving a brief overview. Which kind of tool do you need when you go through this journey? The first one is text editor. There are various text editor in the market, but my favorite is Visual Studio Code, and the second one is Sublime Text, and the third one is Atom. The fourth one is Vim. You can choose as you need which one is more suitable for you. And the browser, I already told you that Chrome and Firefox is the most used browser. You can go with any one of them, and this is also very helpful when you start coding in JavaScript. Then definitely you need to use the use for debugging part. And let's come to the terminal section. अगर मैं टर्मिनल की बात करूं तो सबसे पहले आपका जो CMD होता है, कमांड प्रॉम्प्ट होता है, आप उसे भी यूज कर सकते हैं, जो कि सबसे अधिक यूज होता है। आपने CMD आई थिंक चलाया होगा, मोस्टली आपने कभी ना कभी तो CMD को यूज ही किया होगा। और दूसरा जो होता है गिट बैश होता है, इसमें भी आप इसको एज अ टर्मिनल भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे मैंने यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, बट जो सबसे अधिक यूज होता है वो होता है आपका कमांड प्रॉम्प्ट यूज होता है, और दूसरा आपका गिट बैश यूज होता है। ठीक है,
और द फोर्थ सेक्शन है वो है डिजाइन का सेक्शन है। अगर आप यूआई डेवलपर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा ये डिजाइन पार्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब आप एक कोई प्रोजेक्ट आता है जो कि डेवलपमेंट में होता है तो डेफिनेटली वी हैव टू फर्स्ट स्टार्ट विद द डिजाइन, कि आपकी वेबसाइट दिखनी कैसे चाहिए। तो ये वाला जो सेक्शन होता है ना वो डिजाइनर पार्ट का होता है, वो विद द हेल्प ऑफ फिग्मा, एडोबी या फोटोशॉप की मदद से आपकी वेबसाइट का लैंडिंग पेज तैयार करता है, या आपकी वेबसाइट का डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्शन होता है उसको तैयार करता है। तो डेफिनेटली अगर आप यूआई या यूएक्स डिजाइनर बनते हो तो आपको ये वाली डिजाइन वाला सेक्शन आपको आना ही चाहिए, तब जाके एक अच्छी डिजाइन को बना सकते हो जो कि काफी अट्रैक्टिव और या वेबसाइट के अकॉर्डिंग लगनी चाहिए। तो डेफिनेटली आपको डिजाइन के लिए इन सब टूल का यूज करना पड़ेगा। तो अगेन मैंने इसके लिए एक रेफरेंस दे रखा है नेक्स्ट स्लाइड पे, कि अगर आपको इसको यूज करना है ये वाला। ओके, तो अगर आपको यूज करना है तो मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल की एक लिंक दे रखी है डिजाइन के लिए। आप अगर जैसे ये वीडियो से सेमिनार खत्म होगा तो मैं ये वाला आपको पीडीएफ भी सेंड करूंगा। तो आपको बस करना क्या है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो क्लिकलेबल है, आप सीधे रिडायरेक्ट होगे नए यूट्यूब चैनल पे, जहाँ आपको इसका पर्टिकुलर रिसोर्स आपको मिल जाएगा कि कैसे आप थोड़ा सा और डिजाइन में अपना मतलब आप देख सकते हो कि कैसे फोटोशॉप वर्क करता है, ये सब करता है। ठीक है, तो आप जा सकते हो। जो दूसरा है वीडियो वीडियो कोड क्रैश कोर्स। तो विजुअल स्टूडियो का ये क्रैश कोर्स है जहां पर आपको बेसिकली ये बताया जाएगा कि कैसे आप किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ लेट सपोज आप एक वेबसाइट को डिजाइन करना चाहते हो जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस का यूज किया आपने। आपने फ्रंट एंड के लिए एचटीएमएल का यूज किया है, सीएसएस का यूज किया है, जावास्क्रिप्ट का यूज किया है, या बैकएंड के लिए आपने जस्ट लाइक कोई डेटाबेस का यूज किया है, या आपने फ्रेमवर्क का यूज किया है। तो विजुअल स्टूडियो में ये सब बहुत इजीली होता है। पहले क्या हुआ करता था कि थोड़ा कुछ साल पहले की बात है कि जब जो डेवलपर होते थे मोस्टली वो किसको प्रेफर करते थे, वो एक आता था नोटपैड प्लस प्लस, शायद आप लोगों ने सुना होगा। तो उसमें सारी चीजों को मैनेज करना बहुत ही डिफरेंट मतलब बहुत ही डिफिकल्ट होता था, क्योंकि आपके पास ढेर सारे वो होंगे, क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स होंगी, और उनको एक साथ देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी मैं आपको एक एक चीज और शेयर करता हूँ जहां पर आपको दिखेगा कि सब लाइन आखिर में दिखता कैसा है। एक मिनट, तब तक अपना सेशन चालू रखता हूँ। हाँ, तो ठीक है। तो ये जो आपका वीएस कोड आया है, आपका सबलाइन आया, इसके थ्रू आप मल्टीपल फाइल को बहुत इजीली मैनेज कर सकते हो और अपने जो भी आपको प्रोजेक्ट है उसको आप बहुत अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, अगर आप मैक और लिनक्स यूजर हो तो आप जेएसएच ये जो है आपका ये वाला वर्जन आप इसे भी यूज कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा वर्जन होता है, ये मोस्टली मैक और लिनक्स यूजर के लिए होता है। और आप विंडोज यूज करते हो तो मोस्टली वीएस ही चलता है। तो आप अपने वही है, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इन सबको यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये दूसरा जो है गिट बैश का क्रैश कोर्स है, इसे आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप डेवलपमेंट में जाओगे तो आपकी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं काम आने ही वाली हैं। ठीक है, ओके ओके। ये आपका यहाँ से फ्रंट एंड की जो जर्नी है वो आपकी स्टार्ट होती है। तो फ्रंट एंड को मैंने अभी बताया कि फ्रंट एंड में बेसिकली 3 लैंग्वेजेस लग रही हैं। पहला है एचटीएमएल, दूसरा है सीएसएस, तीसरा है जावास्क्रिप्ट। तो एचटीएमएल भी आप लोगों ने, आई थिंक आप थर्ड ईयर के हो या सेकंड ईयर के हो, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि एचटीएमएल बेसिकली हम किस लिए यूज करते हैं। कोई भी वेबसाइट होगी बिना एचटीएमएल को वो इनकम्प्लीट है, वो बन ही नहीं सकती है, क्योंकि वो पहला स्ट्रक्चर है जहां आपको सारे कोड आपको लिखने पड़ते हैं। और एचटीएमएल के बाद ही सीएसएस मोस्टली किस लिए होता है, सीएसएस डिजाइन के लिए होता है। और जावास्क्रिप्ट किस लिए होता है, कोई उसमें फंक्शनैलिटी को ऐड करना है। ठीक है, तो आपको एचटीएमएल तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ये आपको पहला स्टेप है। और जस्ट जस्ट लाइक ये आपका स्केलेटन है, किसी जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी होती है उसका स्केलेटन होता है, तो आप एचटीएमएल को एज अ स्केलेटन समझ सकते हो। तो ये आपका जरूरी ही है अगर आप वेबसाइट डिजाइन करने जा रहे हो। और अगर आपको उसको थोड़ा डेकोरेट करना है, डिजाइन करना है, तो आप सीएसएस का इस्तेमाल कर सकते हो। और आपको जावास्क्रिप्ट तभी यूज करनी है जब आपको उसमें बहुत अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है, क्योंकि अकेले जावास्क्रिप्ट, अकेले एचटीएमएल और सीएसएस आपकी सारी चीजों को हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको जावास्क्रिप्ट पे काम आपको करना ही पड़ेगा। ओके, तो ये सीएसएस को थोड़ा सा वो है कि सीएसएस मतलब कितनी चीजें हैं सीएसएस में जो आपको पढ़नी चाहिए। एज अ बिगिनर आपको स्टार्टिंग करना है यहाँ से। फ्लेक्स बॉक्स हो गया, आपका सीएसएस ग्रिड हो गया, या कस्टम प्रॉपर्टीज हो गया, आप सबसे पहले इनको गो थ्रू करें। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन हैं जो कि मोस्टली डिजाइन के लिए यूज किए जाते हैं, तो आप वहां भी आ सकते हो। बट यस, आपको मैं जितनी भी चीजें आज बताने वाला हूँ आपको ये सब वन बाय वन ट्राई करना है। ये नहीं कि बस आपने मतलब मैंने सारी चीजें बता दी आप थोड़ा डर जाओ कि इतनी सारी चीजें हैं मैं कैसे कवर कर पाऊंगा। वेब डेवलपमेंट जस्ट लाइक अ ओशियन, मतलब हर एक सेक्टर यहाँ जो कि सीएसआईटी में चल रहा है, चाहे वो मशीन लर्निंग हो या डेटा साइंस हो या वेब डेवलपमेंट हो, अपने में ही एक अकेले में एक समुद्र जैसा होता है। तो डेफिनेटली यू हैव स्टार्ट फर्स्ट।
और जैसे आप स्टार्ट करोगे धीरे धीरे आप उसमें मास्टर होते जाओगे, आपकी चीजें अपने आप फिनिश होती जाएंगी। तो एक साथ तो आप कभी नहीं रैप अप कर सकते हो, और ये बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोसेस है, आप इसे कभी भी खत्म नहीं कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं तो चीजें भी आती ही जाएंगी, बस आपको धीरे धीरे इनमें कमांड लाना है, वो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर ही लोगे। तो इसके अलावा सीएसएस में आपने ये देख लिया क्या होता है, और ये सीएसएस के दो मोस्ट यूज्ड फ्रेमवर्क हैं। पहला है टेलविंड सीएसएस है और दूसरा बूटस्ट्रैप है। शायद आपने ये टेलविंड फर्स्ट टाइम सुना होगा। ये भी एज अ बूटस्ट्रैप की तरह ही होता है। और बूटस्ट्रैप किस लिए होता है कि बूटस्ट्रैप में ना जैसे आपको कोई फंक्शनलिटी बनानी, जैसे आपको ना एक साइन अप का पेज बनाना है, आपको लॉगिन का पेज बनाना है, तो यहाँ पर ऑलरेडी रेडीमेड कोड पड़े रहते हैं। तो आप उनको ना पिक करिए और अपने हिसाब से उसको कस्टमाइज करिए और उसे अपने प्रोजेक्ट में यूज करिए। बट ये हमेशा काम नहीं करता है, क्योंकि कभी भी शॉर्टकट चीजें काम नहीं करती हैं। तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं इसे इस्तेमाल कर सकते हो, बट जब आप जॉब में जाओगे या आपके पास कोई लाइव प्रोजेक्ट आएगा, तो मे बी आपकी उतनी हेल्प ना कर सके। क्योंकि अभी जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे तो आपके अकॉर्डिंग होगा कि चलो ठीक है, मुझे एक वेबसाइट में ना साइन अप का पेज ऐसे चाहिए जो कि बिल्कुल एक ऑलरेडी हूबहू इससे मिलता जुलता है। तो डेफिनेटली यू कैन यूज बूटस्ट्रैप साइट, ओके। बट when you start doing job, then maybe you get a project where the client needs something different, okay। उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ही ऐसी होंगी कि मुझे एक साइन अप पेज चाहिए जिसमें ये सेक्शन हो, कुछ ऐसा दिखता हो, कुछ ऐसी लिंक क्लिक होनी चाहिए, और यहाँ से मैं अगर डेटा को फिल करूं तो कहीं ना कहीं जाके स्टोर होनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप वहां स्टक हो गए। तो हाँ, आप यूज कर सकते हैं, बट इसे मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि डेफिनेटली एट द एंड आपको खुद से ही डिजाइन करना पड़ेगा। बट यस, स्टार्टिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं, एज अ रिसोर्स की तरह यूज करें, और सीखे कि कैसे साइन अप पेज बनाते हैं या नेविगेशन बार बनाते हैं, आपका लैंडिंग या फुटर कैसे आप इसे डिजाइन करते हैं। बट जब आप इसमें थोड़ा सा आपकी इसमें कमांड आ जाए, तो आप खुद से ट्राई करिए, क्योंकि वही बताया मैंने कि रिक्वायरमेंट्स आएंगे वो बहुत ही डिफरेंट होती है क्लाइंट की, तो डेफिनेटली आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा, ओके। और सीएसएस एनिमेशन बहुत अच्छा होता है, और उसमें से जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि इसमें से एक एनिमे जेएस करके एक वो है, एक लाइब्रेरी टाइप की होती है, जिसके थ्रू आप एनिमेशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि आपको जावा स्क्रिप्ट पढ़नी ही पड़ेगी। वेब डेवलपमेंट में जावा की जस्ट लाइक अ हॉट केक नाउ डेज, ओके। अगर आपसे जावा स्क्रिप्ट आएगी तो आपसे रिएक्ट भी अच्छे से होगा, आपसे व्यू भी अच्छे से होगा, और इसके अलावा आपसे टाइप स्क्रिप्ट भी, आपको उसका भी नॉलेज आएगा। इसके साथ साथ आपने कभी नोट जेएस के बारे में सुना होगा, तो नोट जेएस में जो प्योरली ही जावास्क्रिप्ट आपकी यूज होने वाली है, तो आपको कहीं ना कहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही पड़ेगा। विदाउट जावास्क्रिप्ट वेब डेवलपमेंट इज इनकम्प्लीट, ओके। तो आपको जावास्क्रिप्ट में बहुत ध्यान देना है। स्टार्टिंग में आप एचटीएमएल सीएसएस पे काम करें, बट यस, जावास्क्रिप्ट में आपको धीरे धीरे कमांड लानी स्टार्ट करनी है, ओके। यहाँ मैंने वापस से कुछ रेफरेंस दिए हैं। इसमें एचटीएमएल का एक क्रैश कोर्स है, मतलब ये हार्डली 1 आवर 130 मिनट का होता है, या कुछ उससे भी छोटे होते हैं, क्योंकि आपको खाली एक ओवरव्यू देते हैं कि कैसे एचटीएमएल में चीजें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो एज अ बिगिनर आपको इन्हें फॉलो करना है, और जैसे ही आपसे थोड़ा बहुत भी मतलब आपसे अच्छे से आने लगे, तो आपको कुछ और ट्यूटोरियल देखने हैं यूट्यूब से, आप तो बहुत सारी चीजें पा जाओगे। तो डेफिनेटली आप अपने देख लेना कि आपको कौन सी चीज कैसे डिजाइन करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं। और टेलविंड सीएसएस जो मैंने बताया था, आप इस पे क्लिक करेंगे तो लगभग सारी चीजें मैंने पहले से ही सेट कर रखी है। बस आपको यहाँ पर रिसोर्सेज पे क्लिक करना है और आपको सारी चीजें वहां मिल जाएगी। बट ये आपका बस टाइम मांगती है, आप इसे टाइम दीजिए, समझिए कि चीजें कैसे काम कर रही हैं, ये क्या क्या चीजें हैं, और उसे मतलब प्रैक्टिस में जरूर लाइए, क्योंकि ये थ्योरी पार्ट ना कभी भी वर्क नहीं करता है डेवलपमेंट में, तो कभी भी नहीं। आपको ना थ्योरी आपने जैसे पढ़ी, चलो ठीक है, आपने कोई एक डॉक्यूमेंट पाया, ठीक है, जिसमें लिखा है कि एचटीएमएल का क्रैश कोर्स है और उसमें क्या क्या चीजें यूज होने वाली है, तो उसे आप एक बार पढ़िए। उसके बाद जो भी उसमें एग्जाम्पल दिए ना, या उसमें कोई भी ट्यूटोरियल है या असेसमेंट है, उसे आप खुद से ट्राई करिए। जितना आप अपना मतलब उसको यूज करना सीखेंगे, या ज्यादा ज्यादा कोड करेंगे या प्रैक्टिस में लाएंगे, उतनी चीजें आपको ना मतलब रिकॉल होती जाएंगी, क्योंकि सारी चीजें याद रख पाना इम्पॉसिबल है, कोई भी डेवलपर याद नहीं रख पाता चीजें। बट हाँ, उसे चीजें तभी याद रहती हैं जब वो उन चीजों को बार बार यूज करते जाता है। अब जैसे एचटीएमएल में ये नैब वगैरह के लिए जो अभी अपन टैग वगैरह देते हैं, तो ऐसे तो हमें कभी भी नहीं याद होने वाले। तो डेफिनेटली जब आप उनको ज्यादातर यूज करेंगे, तो डेफिनेटली आपको माइंड में कहीं ना कहीं वो सेव होते जाएंगे, और फ्यूचर रेफरेंस में आपको यूज होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 या 4 चीजें हैं, तो आप इसे एक बार देख लेना, जब ये पीडीएफ आपके साथ शेयर होगी तो इसे गो थ्रू कर लेना आप। ओके, ये जावा स्क्रिप्ट का सेक्शन है। सॉरी, आई थिंक ये आगे हो गया। ओके, दिस वन।
ओके, तो ये जावास्क्रिप्ट है। तो आपको जावास्क्रिप्ट में मेन बेसिकली क्या क्या सीखना है? जावास्क्रिप्ट में एक डॉम होता है, डॉम मैनिपुलेशन होता है, वो आपको बहुत अच्छे से सीखना है। और दूसरा है एपीआई। अभी आपने एपीआई शायद फर्स्ट टाइम सुनी होगी। एपीआई मोस्टली किसके लिए होती है? एपीआई से हम डेटा को गेट करते हैं या पोस्ट करते हैं। अब गेट क्या होता है? जैसे कोई भी कंपनी होती है, उनके पास जैसे डेटाबेस है, डेटाबेस के अलावा वो एपीआई का इस्तेमाल करती हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, ठीक है, और क्लाइंट ने मुझे अपना डेटाबेस प्रोवाइड नहीं किया, उसने बोला कि मुझे ना एक ऐसी फंक्शनैलिटी चाहिए कि आप ना यहाँ पर सिंगल क्लिक हो तो यहाँ पर मेरी कंपनी का डेटा यहाँ पर आ जाए, और इसके साथ आपको मैनिपुलेशन करना है, मतलब इसके साथ कुछ मुझे टास्क को परफॉर्म कराना है। डेफिनेटली वो एपीआई का इस्तेमाल करते हैं। एपीआई में अपने डेटा को हम स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है हमारा, और उसे हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एपीआई में मोस्टली 4 चीजें परफॉर्म होती हैं। पहला होता है गेट होता है। गेट मतलब हम किसी पर्टिकुलर एपीआई से कैसे हम डेटा को निकाल सकते हैं, ठीक है। एक कोई एपीआई है जिसके अंदर डेटा, जैसे सपोज किसी कॉलेज का डेटा है, कि उस एपीआई में है बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके फोन नंबर्स हैं, उनकी मेल आईडी है, और उनके हर एक से जो भी सेमेस्टर एग्जाम होते हैं उनके मार्क्स होते हैं। तो ये सारी चीजें मुझे ना फेच करनी है, और उस डेटा को मुझे कहीं ना कहीं यूज करना है, या उस डेटा को मुझे किसी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट कराना है, तब आपकी एपीआई काम आएगी। और दूसरा होता है पोस्ट होता है। पोस्ट मतलब उस पर्टिकुलर वेबसाइट में मुझे डेटा को सेंड भी करना है। ये नहीं कि मैंने बस उस पर्टिकुलर एपीआई से मैंने डेटा को निकाल लिया, नहीं, मुझे उस एपीआई में, उस पर्टिकुलर एपीआई में मुझे डेटा को सेंड भी करना है। तो यहाँ पर पोस्ट का काम आता है। और तीसरा होता है डिलीट होता है। हम एपीआई की डेटा, जो भी उसके अंदर डेटा है, हम उसे डिलीट भी कर सकते हैं, और उस डेटा को हम अपडेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो जेसन होता है, जेसन बेसिकली एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। ये एपीआई जब आप पढ़ोगे, थोड़ा सा और डीप में जाओगे, तब आपको जेसन ये सब अंदर समझ में आएगा। और चौथा है ES6। ये एक्मा स्क्रिप्ट है, ये जावा स्क्रिप्ट का लेटेस्ट वर्जन है। पहले क्या था, पहले स्टार्टिंग में सिर्फ वेनिला जावा स्क्रिप्ट आई थी जिसमें कुछ ही फीचर हुआ करते थे। बट जैसे जैसे ये जावा स्क्रिप्ट का ट्रेंड बढ़ा और आपका वेब डेवलपमेंट काफी ग्रो हुआ, और वहां पर इसकी डिमांड काफी हाई हुई है। आप अभी भी सर्च करोगे गूगल पे, तो जावास्क्रिप्ट सबसे ज्यादा वाइडली यूज्ड हो रही है इन वेब डेवलपमेंट। ओके, तो डेफिनेटली जावास्क्रिप्ट को अपडेट होना ही था। तो वो एक्मा स्क्रिप्ट के साथ अभी भी चल रही है, और वो डे बाय डे या जो भी उसका मंथ में है, उसका अपडेट काफी तेजी से हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको जावास्क्रिप्ट जब आप लर्न करेंगे फर्स्ट टाइम, वेनिला जावास्क्रिप्ट के बाद आपको ये के भी फीचर को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो ये कुछ फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट के। इसे आप तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आपसे जावास्क्रिप्ट आने लगी हो, या आप उससे बेसिक समझने लगे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि रिएक्ट, व्यू और एंगुलर का ही जमाना आजकल चल रहा है, ये वाइडली यूज हो रहे हैं। तो आपको डेफिनेटली यहाँ आना ही पड़ेगा, आपको जीएस पढ़नी ही पड़ेगी। आप अगर जीएस पढ़ोगे तभी आपसे ये फ्रेमवर्क हैंडल होने वाले हैं। तो ये सबसे मतलब वाइडली यूज फ्रेमवर्क हैं जावास्क्रिप्ट के। तो आपको इन्हें वेब डेवलपमेंट कभी ना कभी आपको इन्हें यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपने अभी भी स्टार्ट नहीं की है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग लैंग्वेज है स्टार्टिंग में, बट आप इजीली इसे गेट कर सकते हो। ओके, यहाँ मैंने फिर से कुछ रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं कि जावास्क्रिप्ट का क्रैश कोर्स है, इसे आप जाके वापस से देख सकते हो। इसमें जितने भी फीचर है जावास्क्रिप्ट के, आप उसे यहाँ पर सारे फीचर आपको दिख जाएंगे, और इसमें असेसमेंट भी होता है आपका। और दूसरा है आपके एपीआई। जैसे मैंने अभी बताया एपीआई आपकी किस काम आती है, तो आप एपीआई से डेटा को गेट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एपीआई वाला भी एक ट्यूटोरियल देखोगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एपीआई एक्चुअल में होती क्या है। मैं अभी केवल थ्योरी वाला ही सेक्शन टच कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम का बाउंडेशन है, मैं सारी चीजें टच नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पर फीचर आपके रेफरेंस के लिए मैंने दे रखा है, अब बस गो थ्रू करिए, आप उसे इन चीजों से सीख सकते हैं, ठीक है। तीसरा है जेसन का क्रैश कोर्स है, और चौथा ES6 है, और पांच में टाइप स्क्रिप्ट है। ये भी जावास्क्रिप्ट का ही एक वर्जन है। जब आप जावास्क्रिप्ट में जंप करोगे तो आपको ये भी पढ़ना है, ठीक है। ओके, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी। व्हाट इज फ्रेमवर्क? मैंने अभी एक टर्म यूज किया था शायद अभी कुछ टाइम पहले ही, कि हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? क्योंकि अभी हमने क्या सीखा, हमारे पास फ्रंट एंड हमारा तैयार हो रहा है, ठीक है। आपने एक वेबसाइट बना ली जो कि कुछ दिखती है, एक लैंडिंग पेज है, या उसमें कुछ साइन अप का पेज है, या कुछ उसमें आपने कुछ भी 3-4 पेजेस को ऐड कर रखा है। तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी वेबसाइट चाहिए होगी जिसमें आप यूजर से डेटा भी इंसर्ट करा सकें। आप एक साइन अप का पेज जब आप डिजाइन करते हो, तो डेफिनेटली आप एक
क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोई यूजर आएगा, ठीक है, और वो साइन अप के पेज को फिल करेगा और वहाँ पे इन्फॉर्मेशन को पुट करेगा, जैसे उसने अपना मोबाइल नंबर डाला और उसने अपनी ईमेल आईडी डाली या कुछ भी डाला, तो डेफिनेटली आपको वो डेटा आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि आप इसीलिए आपने साइन अप का पेज बना रखा है जिसके थ्रू आप उस यूजर को फॉलो कर सकें या उस तक पहुंच सकें। तो आपने साइन अप का पेज बनाया किस लिए? आपको डेटा चाहिए था, आपको डेटा मिला, वो डेटा आप स्टोर कहाँ करोगे? तो डेफिनेटली आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी कि आपको डेटा को स्टोर करना है। तो आप यहाँ पर हम क्या आते हैं, बैकएंड साइड, इसको बैकएंड बोलते हैं, ठीक है। किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, और उस डेटा को हम स्टोर कहाँ करेंगे? अपने जो भी आपका डेटाबेस लैंग्वेजेस होती हैं, आपकी एसक्यूएल है, आपका मोंगोडीबी है, और आपका एक फायरबेस या फायर स्टोर है, तो इन सब में अपने अपने डेटा को स्टोर करेंगे। बट आप ये सोचो कि दोनों चीजें लिंक कैसी हो रही हैं, आपका जो फ्रंट एंड पार्ट है वो बैक एंड पार्ट से लिंक कैसे हो रहा है। ये समझ लो एक फ्रेमवर्क इसी मीडिएटर का काम करता है, आपके फ्रंट एंड पार्ट को आपके बैक एंड पार्ट को, आपके फ्रंट एंड पार्ट से आपके बैक एंड पार्ट को कनेक्ट करता है, और एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के बाद हम इसे ही बोलते हैं फुल स्टैक। फुल स्टैक का मतलब क्या हुआ? आपके फ्रंट एंड और बैक एंड एक साथ पैरेलली काम कर रहे हैं, और ये किसके थ्रू हो रहा है? फ्रेमवर्क के थ्रू। फ्रेमवर्क इज जस्ट लाइक अ हॉस्टल रूम, ओके। यहाँ पर लोग हैं, उन्होंने अपने रेंट से इस रूम पे ले रखा है और रह रहे हैं, और ठीक है, तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने के लिए एक हमें मीडिएटर की जरूरत पड़ती है जिसे अपन बोलते हैं फ्रेमवर्क, ओके। तो ओके, तो फ्रंट एंड के कौन कौन से फ्रेमवर्क हैं? तो यहाँ पर रिएक्ट है, व्यू है, और एंगुलर है। अभी मैंने पहले भी बताया था इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में कि ये फ्रेमवर्क होते हैं, और आप अभी भी ये भी समझ गए हो कि फ्रेमवर्क का रोल क्या है। हम फ्रेमवर्क से क्या कराना चाहते हैं? बेसिकली हम बस अपने फ्रंट एंड पार्ट को बैक एंड पार्ट से कनेक्ट कराना चाहते हैं, इसलिए हमें फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है। ओके, front end framework have many advantages. You can build powerful single page application. Okay, ये यहाँ पर ये पावरफुल सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब क्या है? जैसे आपने एक वेब पेज बनाया, ठीक है, आप चाहते हो कि यूजर उसमें इनपुट दे। चलो ठीक है, एक और अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। आपने जोमेटो यूज किया होगा कभी ना कभी, तो आपने यूज तो किया होगा, ठीक है। तो आप जब वहां पर, जैसे आपके पास कोई होटल का मेन्यू आता है, तो उसमें जो आइटम दिखे रहते हैं, जैसे मान लो कोई एक बहुत अच्छी सी डिश है, ठीक है ना, तो वहां पर एक ऑप्शन दिया रहता है ना, +1 का या -1 का, तो वो सारी चीजें वहीं पर ऐड होती हैं, और वो किसी नए पेज पे रिडायरेक्ट नहीं करता है। इसे ही बोलते हैं सिंगल पेज पे सारी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कराना। वहां पर ये चीज भी हो सकती थी कि जैसे आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करो, तो एक आपको वो वेबसाइट एक नए पेज पे रिडायरेक्ट करे। तो ये इसको अपन सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं बोल सकते हैं। सिंगल पेज एप्लीकेशन में क्या होता है, अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो भी उसी पेज में ही हो जाए, विद इन अ सेकेंड या जो भी है, वो आपको किसी नए पेज पे रिडायरेक्ट ना करे। और ये वाली चीज आज के टाइम पे बहुत चल रही है। आप कुछ अच्छी वेबसाइट को विजिट करोगे ना, तो डेफिनेटली आपको ऐसी फंक्शनलिटी मिलेंगी जहां पर सिंगल क्लिक पे जो भी आपको चेंजेस कराने हैं या आपको जो भी एक्शन परफॉर्म कराने हैं, वो आप तुरंत वहीं परफॉर्म कर सकते हो बिना पेज के रिफ्रेश हुए। तो यही आपका है जावास्क्रिप्ट, मोस्टली इसके लिए भी काम आ रही है आजकल। तो ठीक है, यहाँ भी एक जावास्क्रिप्ट अच्छा यूज आपको देखने को मिला है। ओके, यहाँ पर फिर से आपके लिए रेफरेंस है, रिएक्ट का क्रैश कोर्स है, Vue.js का क्रैश कोर्स है, एंगुलर का है, और एक नया ऐड हुआ है, इसके लिए भी आपके पास है। ओके, दिस इज स्टेट मैनेजमेंट। ओके, कॉन्टेक्स्ट एपीआई, रिडक्स, वीएक्स सर्विसेज। ओके, स्टेट मैनेजमेंट में ये अभी आपने रिएक्ट के बारे में सुना, स्टेट मैनेजमेंट में आपको एक नई चीजें सीखने को, अभी आपको सीखनी ही है, आगे ही है आपके। कॉन्टेक्स्ट एपीआई ये रिएक्ट का पार्ट है, और रिडक्स ये भी रिएक्ट का पार्ट है, और वीएक्स ये भी व्यू का पार्ट है, और सर्विसेज ये एंगुलर में आती हैं। तो जब आप इन सारे फ्रेमवर्क को थोड़ा डीप में जाओगे ना, तब आपको ये चीजें थोड़ा सा ज्यादा बेटर समझ में आएंगी। अभी तो नहीं समझ में आ सकती, क्योंकि आप अभी शायद ये इन सब चीजों से पहली बार फैमिलियर हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ओके, कीप ट्रैक एप्लीकेशन स्टेट, ये बेसिकली अभी स्टेट के लिए था, ये भी आपको शायद अभी ना समझ में आए, बट यस, जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। तो यहाँ मैंने फिर से रेफरेंस दिया है रिएक्ट के लिए, कि कैसे इसमें स्टेट मैनेजमेंट होता है, कैसे कॉन्टेक्स्ट एपीआई इसमें वर्क करती है, और ये इसमें रिडक्स का भी एक क्रैश कोर्स है, और व्यूएक्स का भी है। ओके, स्टैटिक साइट जनरेटर एंड सर्वर साइट जनरेटर रेंडरिंग। ओके, स्टैटिक साइट जनरेटर बिकम वेरी पॉपुलर 2020 एंड विल कंटिन्यू 2021। और हाँ, स्टैटिक
मीन्स दैट आपने एक वेबसाइट बनाई जो कि एक सिंगल पेज की है और वो कभी भी उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते हैं। मतलब आपको उसमें अगर कोई चेंजेस करने हैं तो आप ना कोडिंग के अलावा चेंजेस कर ही नहीं सकती हो। यहाँ पे एक नया टर्म आता है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक वेबसाइट, अभी मैं जैसा कि बोल रहा हूँ कि स्टैटिक वेबसाइट में आपने एक बार चीजें बना दी तो उसे आप खुद से चेंज नहीं कर सकते हो। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि कैसे ये चीजें होती हैं। और डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है, जैसे आपने एक वेबसाइट बनाया और फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप उसमें कुछ, आपने कोई सेक्शन या फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया, आप उसे चाहते हैं कि बिना कोडिंग के मैं इसे एज अ डायनेमिक ही रहने दूं, तो ये डायनेमिक वाली वेबसाइट होती हैं। तो एक मिनट में डायनेमिक वेबसाइट आपको शो करता हूँ। ओके, यहाँ भी थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, इससे मैं जब मैं रैप अप करूंगा तब मैं आपको शो कर दूंगा। ओके। ओके, यहाँ पर कुछ और नई चीजें हैं जो कि स्टैटिक साइट जनरेटर में आपके काम आएंगी, जिसमें कि नेक्स्ट जेएस है, ये भी रिएक्ट का पार्ट है, और ग्रिड्सा में ये व्यू का पार्ट है, और जो नेक्स्ट जेएस है ये भी व्यू का पार्ट है। आप हर जगह देख रहे हो ना ये डॉट जेएस क्यों लगा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट बहुत ज्यादा यूज हो रही है, तो आपको उसे तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ तक आना तो डेफिनेटली आपको आना ही पड़ेगा सीखने के लिए, तो आपको यूज करना ही पड़ेगा इन सब चीजों को। ओके। ओके, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके ओके ओके, Yes, sir. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये कुछ टूल्स हैं, कुछ और टूल्स हैं कि जैसे VS कोड जब आप यूज करोगे ना, ये वाला आप यहाँ पर देखो सबसे आखिरी में है आपका, इसमें आप जब VS कोड यूज करोगे इसमें कुछ एक्सटेंशन होते हैं। एक्सटेंशन मतलब कुछ एक पर्टिकुलर चीज को परफॉर्म कराने के लिए कुछ सपोर्ट के लिए होते हैं उसमें, ठीक है। कि जैसे आपको ना अपने टेक्स्ट का कलर को हाईलाइट करना है तो इसमें बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, या आपको ना कुछ इसमें से आपको एरर के लिए एक होता है, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, उसके थ्रू आप ना जैसे कोई एरर होती है वो हाईलाइट नहीं होती है। अभी आप नॉर्मल VS स्टार्ट करोगे यूज करना ना विजुअल स्टूडियो, तो उसमें आपको सजेशंस नहीं आएंगे, जैसे आपने ऑटो करेक्शन का मोड है वो अपने आप नहीं आएगा, तो आपको कुछ एक्सटेंशन होते हैं वो डाउनलोड करने पड़ेंगे। तो आप गूगल करिएगा, आपको सब चीज मिलेगा कि VS कोड में जो मोस्टली वाइडली यूज एक्सटेंशन क्या है वो आपको मिल जाएंगे। ओके। और इसमें कुछ होता है पैकेज मैनेजर अलाउ यू टू इजिली डेटा, sorry, pre-built packages into your application. These packages help you to complete certain function within your application. I use npm. जब आप Node.js यूज करना स्टार्ट करोगे तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जैसे मैं आपको पैकेजेस के बारे में दिखा देता हूँ, ये किस चीज की बात कर रहा है अभी। फाइल मिसिंग है। ओके, ठीक है। तो दूसरा क्या है, टास्क रनर है। ये भी एक थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा चीज़ों को थोड़ा सा और फास्ट करने के लिए, ठीक है। और एक लिंटर और फॉर्मेटर होता है, ये जब आप चीज़ें आप लिखोगे ना किसमें आप Node.js में यूज करोगे तो ये फॉर्मेटिंग के लिए आपके काम आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर जो है आप इसे एक बार देख लेना, और इसके लिए भी मैंने रेफरेंस आपको प्रोवाइड कर रखा है जैसे इसके अगले स्लाइड में, तो आप इसे देख सकते हैं। और हाँ, एक चौथी चीज़ अभी सबसे वाइडली यूज हो रही है वो है कि गिटहब। आपने इसके बारे में शायद सुना होगा। गिटहब क्या है ना कि आपने जैसे एक कोई प्रोजेक्ट को डिजाइन किया, ठीक है, और वो अभी आपके सिस्टम पे है, ठीक है। तो क्या होगा जब आप डेवलपमेंट करोगे तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपके सिस्टम पे ही होंगी।
आप उसे आपको हैंड ओवर करना है या आपको उस प्रोजेक्ट को किसी और को ट्रांसफर करना है, तो आपको अपने सारे कोड को कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए गिटहब का इस्तेमाल किया जाता है। और एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि जैसे आपने अपने कोड में कुछ चेंज किया, अभी मैं जो विजुअल स्टूडियो अभी मैंने आपके सामने जो ओपन किया था, आप वहाँ पर कोई भी अपने फंक्शन को लिखते हो या आप पर्टिकुलर किसी प्रोजेक्ट में वर्क करते हो, उसमें कोई भी चेंजेस करते हो, तो वो चेंजेस जो आपके गिटहब में कोड जो भी इंस्टॉल हैं या जो भी आपने वहाँ पर कोड रख रखा है, तो वो सारे चेंजेस वहाँ अपने आप जाके सेट हो जाएंगे। उसके लिए कुछ कमांड होती हैं, वो आप रन कर सकते हो। तो डेफिनेटली गिटहब भी आपको सीखना पड़ेगा, ये सबसे इसेंशियल है, क्योंकि डेफिनेटली जब आपके पास प्रोजेक्ट आएगा और आप उसे डेवलप करोगे, वो आपके मशीन में होगा या आपके लैपटॉप में होगा, तो कंपनी आपका लैपटॉप तो लेके जाएगी नहीं। आपको डेफिनेटली उसे हैंडओवर करने के लिए सारी फाइलों को कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा। तो तब आपको गिटहब की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप सारे कोड को कहाँ कहीं अपलोड कर सकते हैं, जिस आपको उस कोड को कोई और भी देख सकता है, और वो सारे कोड को एज अ जिप फाइल की तरह वो अपने सिस्टम पे भी अपलोड कर सकता है। ठीक है। ओके, VS Code extension are a must. There are many extension that can help you various technologies. मैंने अभी एक्सटेंशन की बात की थी कि एक्सटेंशन किस लिए हमारे लिए काम आने वाले हैं। और इफ यू राइटिंग, ये आप पढ़ लेना, ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है। और हाँ, अभी मैंने इसके पहले API का मैंने बोला था, तो इसमें एक अभी ये GraphQL दिख रहा होगा सबसे आखिरी वाली स्लाइड में, ये क्वेरी लैंग्वेज है APIs के लिए, ये बहुत अच्छा है GraphQL। अभी शायद आपने पोस्टमैन के भी बारे में भी नहीं सुना होगा। पोस्टमैन क्या होता है कि जैसे आपके पास कोई API है, किसी कंपनी की API है, आपने कोई API बनाई है, ठीक है। अब आपको उसमें ना रन टाइम पे कुछ चला के देखना है कि API में डेटा क्या रखा है, क्या मैं इसमें कुछ गेट का ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ, क्या मैं इसमें कुछ पोस्ट का ऑपरेशन परफॉर्म करा सकता हूँ। तो जस्ट लाइक आप वो टेस्ट के लिए है कि आप विद द हेल्प ऑफ Postman you can test your APIs, either you can also perform different tasks with that particular APIs। और सेम ऐसा ही एक GraphQL होता है जिसमें भी अपन डेटा को ही मोस्टली स्टोर करते हैं। तो GraphQL में एक बहुत अच्छा फीचर होता है कि इसमें हम मल्टीपल डेटा को एक साथ फेच करा सकते हैं। और यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज इसलिए लिखा है क्योंकि GraphQL से डेटा निकालने के लिए और डेटा पोस्ट करने के लिए हमें जस्ट लाइक SQL की तरह हमें क्वेरी लिखनी पड़ती है। ठीक है। तो ये भी मैं आपको अभी सेशन के बाद एक बार लाइव दिखा दूंगा कि इसमें GraphQL में ये कैसी चीजें हो रही हैं। ठीक है। ओके, और यहाँ पर मैंने कुछ रिसोर्सेज फिर दे रखे हैं। npm के अंदर आपका Node.js है कि अगर आपको Node.js इंस्टॉल करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा यहाँ पर जितने भी मैंने इसके पहले वाले सेक्शन में बताया था आपको कि आप जो भी चीज़ों का आपको लर्न करना है, आप इनमें सिंपल क्लिक करिएगा तो आप वो पर्टिकुलर रिसोर्स तक पहुंच जाएंगे, आप उसे यूज कर सकते हैं। और एक्सियोस बेसिकली आपको API को रन कराने के लिए यूज होता है, तो आप उसे भी गो थ्रू कर सकते हैं। और आपको ये सारी चीजें डेफिनेटली आपको जब आप डेवलपमेंट में जाओगे तो आपको काम आने ही वाली हैं। ठीक है। और सबसे आखिरी में क्या है, GraphQL का क्रैश कोर्स है, तो आप उसे भी देख सकते हो। ओके, बैक एंड अभी तक जो चल रहा था अपना फ्रंट एंड वाला पार्ट चल रहा था कि कैसे हम HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड पेज तैयार करेंगे या लैंडिंग पेज तैयार करेंगे, या वो चीजें जो हमें दिखाई दे रही हैं। बैक एंड मोस्टली क्या होता है, जो हमें चीजें दिखाई ही नहीं देती हैं और जो अपना इंफॉर्मेशन स्टोर होता है वो टोटली बैक एंड में आता है। ठीक है। तो ये चीजें हमें कभी भी नहीं दिखेंगी, किसी भी यूजर को नहीं दिखेंगी, ये सिर्फ डेवलपर को दिखाई देती हैं क्योंकि डेवलपर इस पे कोड करता है या उसको फ्रंट एंड के अकॉर्डिंग सूटेबल बनाता है। तो अब हम चलते हैं बैकएंड वाले सेक्शन पे। ओके, तो बैकएंड के लिए ना बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि बैकएंड में काम आने वाली हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप किस लैंग्वेज को पिक करते हो। आप जावास्क्रिप्ट को पिक करते हो, या पाइथन के साथ जाते हो, या रस्ट के साथ, सी हैश के साथ, जावा के साथ, या PHP, या गो, या रूबी। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप पाइथन को पिक करोगे किसके लिए, फुल स्टैक के लिए, तो आपको जेंगो पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है। तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि आपको पहले पिक करनी है। आपको कौन सी लैंग्वेज पिक करनी है, जिस भी लैंग्वेज को आप पिक करोगे आपको उसके सूटेबल फ्रेमवर्क को देखना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेमवर्क ही सबसे मेन पार्ट होता है, क्योंकि फ्रेमवर्क के थ्रू आप अपने फ्रंट एंड पार्ट को बैक एंड पार्ट से कनेक्ट करते हो। और ये अभी कभी भी नहीं हो सकता है कि आपका फ्रेमवर्क किसी और लैंग्वेज में चल रहा हो, ये कंपेटेबल पर टोटल डिपेंड है। ठीक है। तो आपको जब आप लैंग्वेज पिक करोगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको फ्रेमवर्क पिक करना है, नहीं तो उस पर वर्क ही नहीं करेगा वो। ओके, सो अभी मैंने बताया कि आपको लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग पिक करनी है, जो आपको सही लगे या जिस पे आपकी कमांड सबसे अच्छी है तो आप उस पर जा सकते हो। यहाँ पर अगेन कुछ कोर्सेज हैं, और Node.js का है, डीनो का है, रस्ट का है, जावा का एक इंट्रो कोर्स है,
और PHP का है, गो का है और रूबी का है। तो आप इसे गो थ्रू कर सकते हैं, देख लीजिएगा, जो भी आपको सूटेबल लगे उसके अकॉर्डिंग आप आगे इसमें बढ़ सकते हैं। ओके, तो बैकएंड में भी बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं। अभी मैंने केवल लैंग्वेज की बात की है, अभी मैंने फ्रेमवर्क की बात नहीं की है। जब आप लैंग्वेज पिक कर लोगे तो डेफिनेटली आपको फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आप अपने फ्रंट एंड पार्ट को बैक एंड पार्ट से कनेक्ट कर सकते हो। ओके, लेट सपोज आप PHP चूज करते हो, ठीक है, तो एक लारावेल है जो कि इसका फ्रेमवर्क है। तो उसके थ्रू आप अपने इस फुल स्टैक वाले प्रोसीजर को आप आगे कर सकते हो। और अगर आप जावा चूज करते हो तो एक स्प्रिंग फ्रेमवर्क होता है जिसके थ्रू आप इसे कर सकते हो। अगर आप रूबी चूज करते हो तो रूबी ऑन रेल है, फ्रेमवर्क का नाम है, और रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, ठीक है। और आप नोड जेएस चूज करते हो तो डेफिनेटली आपको एक्सप्रेस के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आप पाइथन चूज करते हो तो आपको जेंगो के साथ जाना पड़ेगा। पाइथन के दो मोस्टली होते हैं और मेरा मेन डोमेन पाइथन पे ही था स्टार्टिंग पे। तो पाइथन के आपके पास दो फ्रेमवर्क हैं, पहला है जेंगो है, दूसरा है फ्लास्क है। और जेंगो जो है थोड़ा सा वाइडली यूज होता है, और आप कभी भी आप गूगल करोगे तो आपको इसकी रैंकिंग पता चलेगी। और इस टाइम पे जेंगो थोड़ा सा काफी वाइडली यूज है, और एक्सप्रेस भी काफी टॉप नॉच पे चल रहा है। तो ये आपके ऊपर है, आप किसे चूज करते हो, कौन सी आपको सुटेबल लगती है, किसमें आपकी कमांड अच्छी होती है, टोटली आपके ऊपर है। तो अगेन यहाँ पर रिसोर्सेज हैं, आपको गो थ्रू करना है वन बाय वन, जो भी आपका इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चूज करना है, ठीक है। ये टोटली आपके पास है कि आप किस लैंग्वेज के साथ बढ़ना चाहते हो। और हर एक लैंग्वेज अपने आप में बेस्ट है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि यार कि एक मेरा दोस्त है जिसने पाइथन फुल स्टैक कर रखा है और एक मेरा दोस्त है जिसने जावा फुल स्टैक कर रखा है, और आप बोलोगे एक ने मन कर रखा है एक ने मीन कर रखा है, तो मैं क्या चूज करूँ। क्या टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी लैंग्वेज सूट हो रही है, या आप किसमें बहुत अच्छे कंपेटेबल हो। ये आपके ऊपर है, ये किसी और को देखे कभी मत चूज करना कोई भी टेक्नोलॉजी, ये रिकमेंड है। और हाँ, दूसरी चीज ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्टक नहीं होना है। इन द सेंस आपको उसे अपना फेवरेट नहीं बनाना है कि यार मैं ना पाइथन से मैंने अपनी स्टार्टिंग की जर्नी, अब मैं 24 घंटे केवल पाइथन पढ़ूंगा, केवल पाइथन से रिलेटेड चीजें देखूंगा, मुझे केवल पाइथन आ रही है पाइथन आ रही है, उसके अलावा कुछ नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि एक सबसे वर्स्ट चीज आपको बताता हूँ, शायद आप अभी आने वाले टाइम पे इससे डील करोगे, और ये वर्स्ट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये सारी चीजें अभी तभी नहीं पता चलेंगी, थोड़े टाइम बाद पता चलेंगे जब आप ज्वाइन होगे। बट ये बहुत अच्छी चीज है आपके लर्निंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। जब आपका ना अभी सिलेक्शन होगा इंटरव्यू के थ्रू, या किसी भी कंपनी में आप जाओगे, मे बी आपका सिलेक्शन होगा जावा के थ्रू, ठीक है, या आपका सिलेक्शन होगा पाइथन के थ्रू, बट सारे काम आपको जस्ट अपोजिट भी मिल सकते हैं। जरूरी नहीं आप बस वेट करते रहो आपको जावा के ही प्रोजेक्ट आएंगे, नहीं ऐसा वहां नहीं है। आपको वहां ना नोड जेएस पे भी काम आ जाएगा आपको, हाँ कभी कभी आपको एक्सप्रेस पे भी काम दे देंगे, आपको बोलेंगे आपको रिएक्ट संभालना है, आपको सी दे देंगे, आपको सी हैश दे देंगे, आपको गो दे देंगे, आपको रूबी दे देंगे। तो आपको ना सारे लैंग्वेज का ना आपको कंपेटेबल बनाना है। स्टार्टिंग में कोई एक लैंग्वेज पिक करो जो जिस पे आप अपनी कमांड बनाओ, देन आफ्टर सारी लैंग्वेजेस लगभग सेम है, सब सिमिलर है, बस उसके लिखने का वे अलग है, लॉजिक ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये आसान है, आप लोग सब कर लोगे। तो यहाँ हम बात करते हैं डेटाबेस की। तो मोस्टली डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, पहला है एक रिलेशनल होता है, और दूसरा है जिसमें अपन एसक्यूएल वाली बातें करते हैं कि एसक्यूएल जो हो गया। रिलेशनल अपन क्यों बोलते हैं, रिलेशनल इसलिए बोलते हैं कि उसमें टेबल्स में डेटा को स्टोर किया जाता है, अपन टेबल बनाते हैं, आप कॉलम बनाते हैं, सेक्शंस बनाते हैं, फिर एसक्यूएल में अपन उन अपने डेटा को इंसर्ट कराते हैं। ये वाला जो फीचर है वो एसक्यूएल में है, और पोस्टग्रेस में है, और एज्योर क्लाउड एसक्यूएल में, और एमएस एसक्यूएल में है। और जो दूसरा वाला होता है वो क्लाउड बेस्ड होता है, ठीक है। और उसमें ऐसी कोई टेबल नहीं बनानी पड़ती हमें, उसमें शायद तो उसमें स्कीमा बनाना पड़ता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसके लिए अपने पास क्या है, मोंगो डीबी है, फॉना डीबी है, फायरबेस है। फायरबेस गूगल का है, क्योंकि आज के टाइम पे सबसे अधिक यूज हो रहा है। मतलब सारी ही डेटाबेस लैंग्वेज अपने 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 पे काफी स्ट्रांग है, सबका अपना अपना कुछ ड्रॉबैक है, कुछ उसमें अच्छे अच्छे फीचर्स हैं। तो जब आप इन पे काम करोगे तो आपको ज़्यादा ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और चौथा AWS है, आपको पता है अमेजोन का है AWS, तो वो भी काफ़ी वाइडली यूज हो रहा है, ठीक है। तो यही मैंने बताया, रिलेशनल और नो एसक्यूएल या क्लाउड बेस, दो टाइप के अपने पास डेटाबेस होते हैं। तो ये भी आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको पिक करना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में आप ना जब डेटाबेस की जर्नी स्टार्ट करो ना, तो प्लीज एसक्यूएल से ही स्टार्ट करो, कि आपकी पहली प्राइमरी होनी चाहिए। देन आफ्टर आप चाहे मोंगो डीबी पे जाओ, आप फायरबेस या फायर स्टोर में जाओ, या कोई भी पिक करो, बट स्टार्टिंग आपकी एसक्यूएल से होनी चाहिए। उसका जो वर्जन है लिखने का काफी सिंपल होता है, और तो डेफिनेटली आपको Manoj, स्टार्ट। यस मैम। I think if anybody having any question, क्योंकि जो आपका जो सेशन है ना वो हाँ काफी हाँ। इंटरेस्टिंग है। और as far as RGPV सिलेबस इज कंसर्न, अभी तक RGPV में
हम ये कहें कि बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अभी तक कवर नहीं की गई है जो मार्केट में डिमांड पर है, जो आप डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरी ओके सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, जो थर्ड सेम वाले बच्चे हैं, फिफ्थ सेम वाले बच्चे हैं, आप लोग जो ऐड हैं यहाँ पर, आप लोग क्वेश्चन, आपके क्वेश्चन हो आपके मन में तो क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जहां पर हम कुछ इंटरेक्टिव, मतलब मनोज जो बता रहा है ना वो आउट ऑफ द ट्रैक चीजें आपको बता रहा है जो आपके सिलेबस में नहीं है और जो आज की डिमांडेड चीजें। तो किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है क्या यहाँ तक? क्योंकि ये बहुत ही वर्किंग कोर्स है आज की डेट में, प्रैक्टिकल। यस मैम। मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, वासु ने मेरी हेल्प की थी, और शायद जी। सेकेंड ईयर की एक नाम नहीं याद रहा मुझे, उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी। तो मे भी होता ही है ना कि अभी ये यहाँ पर है ना, ये अपने डाउट्स नहीं पूछते हैं, और ये फिर थोड़ा वो हेजिटेशन होता है इनमें। तो मैं काफ़ी कंफर्टेबल हूँ, आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हो, और मैं अभी सेशन के एंड में अपनी सोशल अकाउंट भी प्रोवाइड करूँगा, तो आप मुझे वहाँ अपने डाउट्स पूछ सकते हो। होता है मैम, मोस्टली वो अपने डाउट्स नहीं रेस करते हैं। सो वी आर हैविंग ओनली 8 minutes नाउ, ओके है ना मनोज? ओके ओके। काइंड ऑफ दी थिंग। एंड मनोज, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि इस टॉपिक के लिए हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसा 1 week का या 5 days का कुछ प्रैक्टिकली फुल चलाएं, जिसमें बच्चे और सीखें, है यस ना? मैम, श्योर श्योर तो श्योर। हाँ ओके मैम, मैं इसे रैप अप करता हूँ। जी। ओके, व्हाट्स नेक्स्ट? ओके, एपीआई मैंने आपको पहले ही बता दी थी, एपीआई किस काम आती है आपके। और ये सबसे आखिरी वाला फेज होता है डिप्लॉयमेंट का। जब आपका कोई प्रोजेक्ट बन जाता है तो उसे आपको डिप्लॉयमेंट वाले फेज में लाना पड़ता है, और उसे आपको होस्ट भी करना पड़ता है। तो शायद अभी टाइम का शॉर्टेज है, तो आप ना इसे गो थ्रू कर लेना। और यहाँ पर सब चीज़ लगभग दी हुई हैं, आपको होस्टिंग करनी पड़ती है, और होस्टिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, तो आप उसे देख लीजिएगा। मैंने रिसोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। जितनी भी यहाँ पर दूसरे कलर में ये टेक्स्ट आपको लिखे हैं, ये सारे क्लिकलेबल हैं। जैसे आप इन पर क्लिक करोगे तो आपको एक पर्टिकुलर कोई रिसोर्स मिलेगा जिसे आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये होस्टिंग वगैरह का है, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। और बाकी आप इसे कर सकते हो। और एक चीज़ मैंने ये बोला है कि ना, कभी भी आपके पास कोई भी डाउट हुआ करे ना, तो सबसे पहले गूगल पे भरोसा करो, क्योंकि चाहे वो डेवलपर अमेजोन का हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी और भी हो, हर कोई आजकल गूगल से ही सीख रहा है। और दूसरा स्टैक ओवरफ्लो। तो डेफिनेटली आपके पास कभी कभी ऐसा होगा ना कि आपने अपने सीनियर से कोई डाउट को रेज किया, मे बी उसके पास टाइम नहीं है, वो वर्किंग में है, या वो आपको बताना नहीं चाहते, और वो आपके इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो, मे बी आपकी हेल्प ना करे। तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका हमेशा वेट तो नहीं कर सकते हो ना, तो आप गूगल करो, चीज़ें सही तरीके से गूगल करो। ये भी एक स्किल है कि चीज़ें गूगल से निकालती कैसे हैं या निकाला कैसे जाता है। तो डेफिनेटली जब आप डेवलपमेंट में जाओगे आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क पता क्या है, गूगल पे राइट चीज़ें लिखना, कि हमें पर्टिकुलर उसके उस जहाँ भी हम स्टक हुए हैं उसका आंसर हमें मिल सके। ये भी एक बहुत बड़ी स्किल है। जब आप डेवलपमेंट में जाओगे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, अभी नहीं समझ में आएंगी। तो डेफिनेटली आपके पास अगर कोई नहीं मिलता है, आपको सीनियर गाइड करने वाला नहीं मिलता, आप अप्रोच करो, वेट करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, और नहीं उनको याद है तो उनको वापस से मैसेज करो, क्योंकि यार वो वर्किंग में उनके पास ऑलरेडी इतना लोड है कि शायद ही आपका, शायद आपको टाइम ना दे पाए, आपके रिप्लाई ना कर पाए। पर ठीक है, आपके पास गूगल है यार, आप कर सकते हो, आप सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हो। ठीक है, तो आई थिंक ये इतना ही था। और सेशन के end में मैंने सोशल प्रोफाइल शायद डाली थी मैंने, अच्छा इस पे नहीं है। ओके ओके, हाँ, ये सबसे आखिरी में मैंने दे रखा है। मैं लिंक्डइन में काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो मेरी आपको प्रोफाइल मिल जाएगी। तो आप जाइए वहाँ, मुझसे आप जो भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकते हैं, जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है या मिलेगा मैं आपको गाइड करूंगा, या जो भी आपके डाउट्स हैं अगर मुझे आते हैं डेफिनेटली आपको मैं रिजॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो ठीक है, आई होप आपको कुछ सीखने को मिला हो। सो वासु, Yes, ma'am. हाँ, काइंडली शेयर द सर्टिफिकेट ऑफ मनोज सर on behalf of whole Sage family. Manoj sir, we are giving you the certificate. So, and definitely in future we will invite you for another very practical session, जो कि 1-2 घंटे से, मतलब हम कम से कम 1 week का सेशन जरूर प्लान करेंगे, जिसमें बच्चे और सीखें और प्रैक्टिकली ज्यादा, है ना, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग काइंड ऑफ। यस मैम। So Manoj, this is the certificate from the Sage family. थैंक यू मैम। Thank you so much for giving us the wonderful time and wonderful slide थैंक यू मैम। and wonderful और knowledge which is ओके demanded. Yes. ओके मैम, मैं ये जो स्लाइड है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप
जूनियर्स तक पहुंचा दीजिएगा इसे। जी। एंड ये वीडियो भी हम यूट्यूब पर जो हमारा ऑफिशियल चैनल है कॉलेज का, हम उस पर अपलोड करेंगे, वहां से Okay. बच्चे भी कनेक्ट हो सकते हैं आपसे। So हम्म। at the last, I would like to invite Vivek Rawat sir for giving the vote of thanks on behalf of whole Sage family. Vivek sir. Yes, ma'am. Thank you, Manoj. Thank you for valuable session, and hope I will invite you soon for skill development training. Thank you. Sure sir. Thank you, Manoj. If anybody having any doubt, get connected with the Manoj on given social media handles, and we are also here. And all the knowledge that Manoj has been shared is definitely will be working in your subjects like IWT, like in website development, and so many things. So get in touch with the Manoj. Manoj, thank you so much. Thank you, ma'am. So, okay, thank you. Thank you so much. You can end the meeting. You are the host. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir.